بلا شبہ 3000 کے مختصر لشکر کو 1.5-2 لاکھ رومیوں کے نرخے سے صحیح سلامت نکال لانا خالد بن ولید کا ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ یہ بھی ان کی جنگی مہارت کی ایک روشن دلیل ہے کہ خالد بن ولید کے لشکر کی قیادت سنبھالنے سے لے کر اسے دشمنوں سے بچا کر نکال لے جانے کے عرصہ تک میدان موتا میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ بعض مورخوں نے جوش عقیدت میں یہ بات لکھ دی ہے کہ خالد بن ولید نے صرف 3000 مسلمان مجاہدین کے لشکر سے 1.5-2 لاکھ کے رومی لشکر کو شکست دے دی تھی۔ ناظرین، میرے خیال میں یہ بات قطعی ناقابل فہم ہے، اس لیے کہ ایک تو 3000 سے 2 لاکھ کا مقابلہ جبکہ رومی لشکر مسلمان لشکر کو اپنے نرخے میں لیے ہوئے تھا، اسے شکست فاش سے 2-4 کرنا قطعی ناممکن تھا۔ جس مورخ نے بھی ایسا لکھا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ اس خیال کے برعکس یہ خیال بھی غلط ہے کہ مسلمان لشکر موتا کے میدان میں ان سے منہ چھپا کر اور شکست کھا کر مدینہ واپس آیا تھا۔ جس طرح موتا میں مسلمانوں نے فتح حاصل نہ کی تھی، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان موتا سے میدان چھوڑ کر بھی نہ بھاگے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مدینہ میں افواہ پھیل گئی تھی کہ خالد بن ولید مسلمان لشکر کے ساتھ میدان موتا سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ اس افواہ کے نتیجے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ مسلمان لشکر اور سالار لشکر خالد بن ولید کے مدینہ واپس آنے پر ایک طرف سے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ لشکر کے استقبال کو نکلے تھے، اور دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ لشکر میدان سے بھاگ کر آیا ہے اس پر مٹی پھینکنا شروع کر دی تھی، اور لوگوں نے یہ آوازیں لگائی تھی، تم بھگوڑے ہو، تم اللہ کے راستے سے بھاگے ہو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا اور فرمایا تھا یہ بھگوڑے نہیں ہیں، انشاءاللہ دوبارہ جہاد پر جائیں گے۔ ناظرین، جنگ موتا کے سلسلے میں ابن برہان الدین نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہی صحیح اور درست ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جنگ موتا میں مسلمانوں کو اس لحاظ سے فتح حاصل ہوئی تھی کہ اس موقع پر صرف 3000 مسلمانوں کے مقابلے پر 2 لاکھ رومی سپاہ موجود تھی۔ اس عظیم لشکر کی میدان میں موجودگی میں مسلمانوں کے زندہ بچنے کی کوئی صورت نہ تھی، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ 3000 مجاہدین میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ کر جا سکے گا، لیکن خالد بن ولید نے بے پناہ شجاعت اور اپنی جنگی صلاحیت کی وجہ سے بغیر کسی بڑے نقصان کے مسلمانوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا اور ان کے لشکر کی ہمت افزائی فرمائی۔ اب لشکر اسلام کے سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بار پھر مکہ کی طرف اٹھی۔ اگرچہ اہل مکہ اور ابو سفیان میں مسلمانوں سے مقابلہ کی قطعی طاقت نہ رہی تھی، لیکن مکہ تمام عرب قبائل کی روحانیت اور طاقت کا مرکز تھا۔ ابو سفیان جب تک مکہ پر قابض تھا اس کی سرداری اور طاقت برقرار رہی تھی، اور وہ اہل مکہ کا حاکم تھا۔ مکہ مدینہ والوں کو بھی اس قدر محترم اور عزیز تھا جس قدر اہل مکہ کے لیے۔ اگرچہ مکہ اور خانہ کعبہ میں بت پرستی ہوتی تھی اور خانہ کعبہ میں 320 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان مکہ کا اس لیے احترام کرتے تھے کہ وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تعمیر کردہ اس دنیا میں دین اسلام کی نشانی اور خدا کا پہلا گھر کعبہ موجود تھا۔ ناظرین، مدینہ والوں کے مکہ سے پیار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ میں بے شمار مہاجر آباد تھے جن کا اصل وطن مکہ تھا اور ان کی یادیں وہاں سے منسلک تھیں، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے راستے میں صلح نامہ حدیبیہ حائل تھا۔ صلح نامہ کی وہ شرط تو ختم کر دی گئی تھی جس کے تحت اگر کوئی مکی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاتا ہے تو اسے واپس مکہ بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور اس شرط کو خود ابو سفیان کی درخواست پر ختم کیا گیا تھا۔ ناظرین، ابن حاتم نے اس شرط کے منسوخ ہونے سے پہلے ہی مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابو سفیان کے سلوک نے اسے اہل مکہ سے پوری طرح باغی کر دیا تھا۔ اب اس کے لیے مکہ کی ہوا اور فضا میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، چنانچہ ایک دن اس نے نعیم بن مسعود کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ابن حاتم نے پرعزم لہجے میں کہا، چچا جان، میں اب مکہ میں ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتا، مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ نعیم بن مسعود مسکرائے۔ انہیں گمان گزرا کہ شاید ابن حاتم اپنی منگیتر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر اس طرح مدینہ جانا چاہتا ہے۔ نعیم بن مسعود نے ابن حاتم کو چھیڑا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی منگیتر کی یاد بہت ستا رہی ہے، مگر یہ بتاؤ اگر میری مصلحتیں تمہیں مدینہ جانے سے روکیں تو تم کیا کرو گے؟
ابن हातम का लहजा एकदम करख्त हो गया, चचा जान, मगर फौरन ही वो संभल गया। इसे मालूम था कि उसके चचा नईम बिन मसूद ने उसके लिए अबू सुफियान से बड़ी सख्त बातें की थी और कुरैश और बनु गतफान के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया था। चुनांचे वो सख्त लहजे में सिर्फ चचा जान ही कह सका, उससे आगे और कुछ ना कह सका। नईम बिन मसूद ने भी भतीजे के लहजे की सख्ती महसूस कर ली थी, मगर जब इब्ने हातम आगे कुछ कहने के बजाय खामोश रहा तो उन्होंने कहा, इब्ने हातम, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? उनके लबों पर मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हारे दिल की कैफियत से वाकिफ हूँ, माशाल्लाह तुम जवान हो। इब्ने हातिम ने एहतजाज किया, मगर उसके लहजे में सख्ती की बजाय मलाइमत थी। चचा जान, उसने मजीद कहा, मेरे दिल में सिवाय अबू सुफियान से नफरत के और कुछ नहीं है, और यही नफरत मुझे मक्का से मदीना ले जा रही है। नईम बिन मसूद ने मलायम से लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें अबू सुफियान से नफरत करनी ही चाहिए। उसने तुम्हारे साथ ना सिर्फ गैर मुहज्जब रवैया अख्तियार किया, बल्कि तुम्हें कत्ल कराने की भी कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारे मक्का में ना रहने या मदीना चले जाने से इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तुम किसी और वजह से मदीना जाना चाहते हो तो। इसके बाद नईम खामोश हो गए, मगर इनकी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं हुई। इब्ने हातम इस वक्त तक अपने गुस्सा और जज्बात पर काबू पा चुका था और बोला, चचा जान, आपने कहा कि मेरे मदीना जाने से अबू सुफियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ठीक है कि इस पर या मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर आप पर जरूर पड़ेगा। नईम ने घबरा कर इसे देखा, मुझ पर? वो कैसे? इब्ने हातम ने वजाहत की, असर यूं पड़ेगा चचा जान कि मुझे अबू सुफियान से सख्त नफरत हो गई है। मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहता। वो मुझे नजर आ गया तो शायद मैं अपने आप पर काबू ना रख सकूं और तलवार खींच लूं। इस पर नईम बिन मसूद बोले, इब्ने हातम, मुझे तुम्हारी नादानी पर हंसी आती है। तुम अबू सुफियान की चालाकियों और कीना परवरी को जरूर जानते हो, मगर उसकी सिपाहियाना सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। अबू सुफियान दुनियाए अरब के इन चंद शमशीर जनों में शुमार होता है जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जरा रुक कर इन्होंने कहा, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि इसके मुकाबले पर कभी मत आना। इब्ने हातम ने कहा, चचा जान, मेरा मकसद हरगिज ये नहीं। मैं कब कहता हूं कि मैं अबू सुफियान जैसा पुराना और तजर्बाकार शमशीरजन हूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरा इसका कभी सामना हो गया तो शायद जंग की नौबत आ जाए। इस जंग से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम अपने कबीले से बाहर जाना बंद कर दो। नईम ने इसे एक बड़ा साहिब मशवरा दिया। ना तुम क्रैश के इलाके में जाओगे और ना तुम्हारा अबू सुफियान से सामना होगा। इब्ने हातिम को शायद ये पाबंदी कबूल ना थी। उसने जल्दी से कहा, चचा जान, ये कैसे हो सकता है? आइंदा माह उकाज का मेला है, मैं इसमें जरूर शरीक हूंगा। नाजरीन, इस बात का ख्याल रहे कि अरब के मुख्तलिफ कबाइल मक्का के इर्द गिर्द बल्कि दूर तक आबाद थे और हर कबीला का दूसरे कबीले से कम अज कम 4 से 6 मील का फासला होता था। लड़ाई झगड़े से बचने के लिए वो एक दूसरे के इलाके में बहुत कम जाते थे। सिर्फ उकाज का मेला अरबों का वो मुश्तरका मेला था जिसमें हर कबीले की शिरकत जरूरी होती थी। उकाज का बाजार या मेले का मैदान मक्का से बहुत करीब था। वहाँ साल के एक दिन तमाम कबीले जमा होते थे। दर्जनों खेल तमाशे और मुकाबले मुनक्कद होते थे। मुकाबलों में 2 मुकाबले बड़ी अहमियत के हामिल थे, घुड़सवारी और शेर शायरी। नाजरीन, शेर शायरी के मुकाबले में फिल बदरिया शेर कहने वाले शायर शिरकत करते थे, क्योंकि इन मुकाबलों में बैठे शायर शिरकत करते थे। इन्हें मुकाबला में बैठे शायर को फौरन ही शेर का जवाब शेर में देना होता था। हर शायर अपने कबीले की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देता था और ये मेला यूं तो बहुत मशहूर था और अरब कबाइल खुशी खुशी इसमें शिरकत करते थे। लेकिन इन मुकाबलों में अक्सर तलखी इस वक्त पैदा हो जाती थी जब कोई शायर मुकाबल शायर के कबीले की किसी हसीना या महबूबा की तारीफ उसका नाम ले लेकर करने लगता था, या फिर गढ़ दौड़ में बेईमानी की जाती थी। अरबों की ये कबायली जंग अगर एक बार भड़क उठती तो साल 2 साल तो कोई बात ना थी। एक जंग तो मुसलसल 50 साल तक होती रही थी जिसमें कई हजार अरब मारे गए थे और बहुत छोटे छोटे कबीले सफाई हस्ती से हमेशा के लिए मिट गए थे। औकाज का नाम सुनकर नईम बिन मसूद चौंके। इन्होंने कहा, तुमने अच्छा याद दिला दिया इब्ने हातम। इस साल तो हम औकाज के मेले में बड़ी शान से शरीक होंगे। हमारे कबीले के शायर ने हमें यकीन दिलाया है कि इस मरतबा वो मेले में दूसरे शायरों का दू बदू फिल बदरिया मुकाबला करेगा।
इन्होंने इब्ने हातिम के शाने पर हाथ रखा और कहा, इसके अलावा इसने अपने कबीले बनु गतफान का ऐसा शानदार कसीदा तैयार किया है जिसे सुनकर कुरैश के शोरा खिस्याने हो जाएंगे। इब्ने हातिम खुश हो गया और बोला, ये तो आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई है चचा जान, फिर तो इस साल मैं जरूर उकाज के मेले में जाऊंगा। इब्ने हातिम का अंदाज बड़ा फैसला कुन था, लेकिन नईम बिन मसूद ने इसे पाबंद करने की कोशिश की। इन्होंने इसे मुखातब करके कहा, देखो इब्ने हातिम, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर उकाज जाने की इजाजत दूंगा। इब्ने हातिम ने खुश दिली से जवाब में कहा, फरमाइए चचा जान, मैं आपकी शर्त हुक्म समझकर पूरी करूंगा। शर्त यही है बेटे, नईम बिन मसूद ने मोहब्बत से कहा, कि अगर तुम्हारा और अबू सुफियान का आमना सामना हो जाए तो तुम फौरन दूसरी सिमत निकल जाओगे, वरना समझ रखो कि अबू सुफियान ने मेरी भी बहुत तौहीन की है। अगर वो तुमसे उलझ पड़ा तो मैं भी खामोश ना रह सकूंगा और फिर एक ऐसी खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी जिसके खात्मे के मुतल्लक कोई पशीन गोई नहीं की जा सकती। इब्ने हातिम ने देखा कि नईम बिन मसूद की पुतलियां बदल गईं और होंठ फड़कने लगे। ये नईम बिन मसूद के इंतहाई गुस्से की अलामत थी। बस उसने चचा को यकीन दिलाया, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए चचा जान, मैं आपकी इस शर्त को हुक्म समझकर अबू सुफियान का कितई सामना नहीं करूंगा, और अगर इत्तफाकिया सामना हो गया तो मैं अपने ऊपर पूरा काबू रखूंगा। अगर उसने कोई उल्टी सीधी बात कही तो मैं सर झुकाकर दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। इब्ने हातिम ने कहा, चचा जान, आपने मेरे बारे में कोई अहम फैसला किया है, क्या इस फैसले से आप मुझे आगाह नहीं करेंगे? नईम बिन मसूद ठंडी सांस लेकर बोले, इब्ने हातिम, मैं तुम्हें अपना बेटा ही समझता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और नोहना की शादी धूमधाम से हो और हमारा पूरा कबीला इसमें भरपूर हिस्सा ले, मगर मुझे अफसोस है कि मैं अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब तक इसकी इजाज़त हासिल ना कर सका कि मैं अपने और अपने कबीले के मुसलमान होने का ऐलान कर दूं और अपने पूरे कबीले के साथ मदीना मुंतकिल हो जाऊं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम फौरन मदीना जाओ और नोहना से शादी कर लो। इब्ने हातिम खुश हो गया, फिर उस ख्याल से अफसुर्दा हो गया कि उसका मोहब्बत करने वाला चचा उस शादी में शरीक ना हो सकेगा। उसने अपनी उदास आवाज में कहा, चचा जान, मुझे इस वक्त यूं महसूस हुआ जैसे मेरा बाप जिंदा हो गया। मुझे इल्म नहीं था कि आप मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। बस मैं आपकी शिरकत के बगैर शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि अब हालात इस कदर तब्दील हो चुके हैं कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने मुसलमान होने के ऐलान की इजाज़त दे देंगे। मेरा यह भी ख्याल है कि आपको मदीना मुंतकिल होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए कि अबू सुफियान आपकी मुखालफत मोल लेने की गलती नहीं करेगा। नईम बिन मसूद मुस्कुराए। अबू सुफियान के दिल का हाल सिर्फ वही जानता है। वो बड़ा गहरा आदमी है। ये ठीक है कि शायद इस वक्त वो मेरी मुखालफत ना करे, मगर बिच्छू डंग मारने से तो नहीं चौंकता, ये तो इसकी फितरत है। इब्ने हातिम ने सीना तान कर कहा, तो फिर आप मुझे इजाजत दीजिए चचा जान कि ये काम मैं खुद सर अंजाम दूं। नईम बिन मसूद घबरा गए। कौन सा काम? तुम कौन सा काम करना चाहते हो इब्ने हातिम? इब्ने हातिम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, यही काम चचा जान कि मैं मदीना जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूं कि मैं और आप अपने मुसलमान होने का ऐलान कर सकते हैं या नहीं। नईम बिन मसूद सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद इन्होंने कहा, देखो इब्ने हातिम, तुम अगर मदीना जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, तुम वहां जाके शादी भी कर सकते हो, मगर जहां तक मेरे मुसलमान होने का मामला है तो ये मेरे और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा है, और मुआहदा इसी वक्त खत्म हो सकता है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसे खत्म करेंगे। मैं इस सिलसिले में इनसे कोई दरखास्त नहीं कर सकता। इब्ने हातिम ने जवाब दिया, ठीक है चचा जान, आप अपना मुआहदा नहीं तोड़ सकते तो ना तोड़िए, मगर मैं अहद तो कर सकता हूँ। नईम बिन मसूद उलझ कर बोले, कैसा अहद? किसका अहद? तुम कैसी बातें कर रहे हो इब्ने हातिम? इब्ने हातिम ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, अच्छा तो सुनिए कि मैं क्या अहद कर रहा हूँ। मैं अहद करता हूँ कि मैं मक्का में रहूँ या मदीना में, मगर नोहना से मैं इस वक्त तक शादी नहीं करूँगा जब तक मक्का का हर मुसलमान इसी तरह सर उठाकर ना चल सके जिस तरह मदीना के मुसलमान चलते हैं। नईम बिन मसूद अपने भतीजे का अहद सुनकर हैरान रह गए। इसके साथ ही इन्हें इस बात की भी खुशी हुई कि वो एक ऐसा नौजवान है जिसे एक लड़की से मोहब्बत है और शायद लड़की को भी इससे मोहब्बत हो। फिर ये कि दोनों शादी कर सकते हैं, कोई मजबूरी भी दरमियान में हायल नहीं। फिर भी ये नौजवान इस्लाम की सरबुलंदी का ख्वाहिशमंद है और अपनी तमाम ख्वाहिशात को इस वक्त तक
निस्यान पर रखना चाहता है जब तक कि मक्का में पूरी तरह इस्लाम ना फैल जाए। ज़ाहिर है कि मक्का में इस वक्त तक कोई मुसलमान सर उठा के नहीं चल सकता जब तक कि मक्का के लोग बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम को सीने से ना लगा ले। ये बात तभी मुमकिन हो सकती है जब मुसलमानों का मक्का पर कब्जा हो जाए। आखिर नईम बिन मसूद मुस्कुराए, शाबाश है तुम पर इब्ने हातम, अगर अरब के तमाम नौजवान तुम्हारे जैसे दिलो दिमाग के मालिक हो जाएं तो फिर मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नाजरीन, इसी शाम इब्ने हातम ने रखते सफर बांधा और आज़म मदीना हुआ। नईम बिन मसूद ने इसे चलते वक्त बताया था कि वो मदीना पहुंचते ही अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल हो जाएगा। नईम बिन मसूद ने कहा था, मेरा मशवरा है इब्ने हातम कि इस सिलसिले में सबसे पहले खालिद बिन वलीद से मिलना, अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें मेरा हवाला भी दे देना ताकि तुम्हें लश्कर इस्लाम में ना सिर्फ शामिल कर लिया जाए बल्कि तुम्हें कोई अच्छा ओहदा भी मिल सके। चचा की हदायत के तहत इब्ने हातम मदीना दाखिल होते ही सीधा खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा और सलाम के बाद अर्ज किया, ऐ सरदार, मैं बनु गतफान के सरदार नईम बिन मसूद अशजई का भतीजा इब्ने हातम हूँ। मैं अभी अभी मक्का से यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे चचा ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं मदीना पहुंचकर सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर होकर उनका सलाम पेश करूं। खालिद बिन वलीद ने पहले नईम बिन मसूद के सलाम का जवाब दिया, फिर इब्ने हातम से मुखातब हुए, ऐ इब्ने मसूद के कासद और भतीजे, क्या नाम बताया तुमने अपना? हातम ने बड़े अदब से खालिद बिन वलीद के सवाल का जवाब दिया, खादम को इब्ने हातम कहते हैं ए मोहतरम सरदार। बहुत खूब इब्ने हातम, खालिद खुश दिली से बोले, नईम बिन मसूद मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, तुम उनके भतीजे हो इसलिए मेरे भी भतीजे हो, मैं तुम्हें अपना भतीजा ही कहकर मुखातब करूंगा। ये आपकी जरा नवाजी है मोहतरम सरदार, इब्ने हातम ने बड़े अजब से कहा। खालिद ने इस पर मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, अच्छा भतीजे, ये बताओ कि हमारे दोस्त ने क्या पैगाम दिया है? इब्ने हातम ने अदब से जवाब दिया, मोहतरम सरदार, चचा ने आपको सिर्फ सलाम भेजा है। हाँ, मैं जरूर एक अर्ज लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। भाई इब्ने हातम, ये अर्ज मार्ज ये सब तकल्लुफ की बातें हैं, साफ साफ बताओ कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम क्या चाहते हो? इब्ने हातम ने जल्दी से कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं सरदार मोहतरम, मैं दरअसल आपकी खिदमत में एक दरखास्त पेश करना चाहता हूँ। खालिद बिन वलीद बदस्तूर मुस्कुराते हुए बेतकल्लुफ ही से बोले, अरे भतीजे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें भतीजा कह चुका हूँ, तुम जो चाहते हो साफ साफ अल्फाज कह डालो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की जरूर कोशिश करूंगा। इब्ने हातम ने सर झुकाकर अर्ज किया, सरदार मोहतरम, मैं चाहता हूं कि आप मुझे लश्कर इस्लाम में दाखिल करवा दें। खालिद ने उसे चौंक कर देखा, ये तो बड़ी खुशी की बात है भतीजे, मैं तुम्हें मरहबा और खुशामदीद कहता हूँ। लश्कर इस्लाम को तुम जैसे ही जवानों की जरूरत है, तुम आज से अपने आप को इस्लामी लश्कर में शामिल समझो। नाज़रीन, इब्ने हातम बेइंतहा खुश हुआ। उसका ख्याल था कि लश्कर में शामिल होने के लिए शायद इसका इम्तिहान लिया जाएगा, मगर इसे फौरन ही शमूलियत हासिल हो गई। इसने बड़ी मुसर्रत से कहा, सरदार मोहतरम, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी एक बहुत बड़ी तमन्ना पूरी कर दी। खालिद बिन वलीद ने अपने हातम को पास बैठाकर इसके सर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा भतीजे, अब एक बात बताओ, कभी तुमने किसी को कत्ल होते हुए देखा है? उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी सरदार, मैंने कई आदमियों को कत्ल होते देखा है, बल्कि वो ये कहते कहते एकदम रुक गया। खालिद ने दिलचस्पी से पूछा, रुक क्यों गए भतीजे, तुम कुछ कह रहे थे? इब्ने हातम ने झिझकते हुए जवाब दिया, सरदार मोहतरम, मैंने कई आदमियों को कत्ल होते और कत्ल करते भी देखा है, मैंने कई लड़ाइयाँ देखी हैं और मैं खुद भी एक लड़ाई लड़ चुका हूँ। खालिद की दिलचस्पी और बढ़ गई, अच्छा तो हमारा भतीजा लड़ाई भी लड़ चुका है, किसी से मारपीट हुई थी या कुश्ती लड़ते थे? इब्ने हातम ने संभल कर कहा, नहीं सरदार मोहतरम, ऐसी बात नहीं, दरअसल अबू सुफियान के 3 सवारों ने मुझ पर एकदम हमला कर दिया था, फिर मुझे भी मजबूरन उनसे लड़ना पड़ा। खालिद बिन वलीद ने पहलू बदलकर पूछा, अच्छा तो तुम अबू सुफियान के सरदारों से दो बदू लड़ चुके हो, ये कब का वाक्य है और इसका क्या नतीजा निकला था? खालिद बिन वलीद के दरियाफ्त करने पर इब्ने हातम ने इस वाक्य की पूरी तफसील बयान कर दी। उस वक्त खालिद बिन वलीद को याद आया कि ये वाक्य तो पहले भी सुन चुके हैं। फिर इन्होंने इब्ने हातम को उसकी बहादुरी पर दाद दी और फिलहाल उसे 4 सवारों का सरदार मुकर्रर कर दिया। उसके बाद इब्ने हातम ने एक और दरखास्त पेश की, सरदार मोहतरम, मेरे खालू और खाला मदीने में रहते हैं,
मैं इनसे कुछ देर के लिए मिलने जाना चाहता हूँ, वहाँ से लौटकर मैं यही फौजी खामों में रहूँगा। खालिद बिन वलीद ने इसे इजाज़त दे दी और कहा, ठीक है, तुम अपने अजीज़ों के पास जा सकते हो। फिर एक सरदार को बुलाकर हुक्म दिया, इस नौजवान को अच्छी तरह पहचान लो, इसका ताल्लुक बनु गतफान से है और यह सरदार नईम बिन मसूद का भतीजा है, इसलिए मेरा भी भतीजा है। हमने इसे 4 सवारों का सरदार मुकर्रर किया है। अभी यह वापस आता है तो तुम इसे जरूरी बातें समझा देना। उसके बाद इब्ने हातिम ने खालिद बिन वलीद से कहा, सरदार, मुझे जाने की कोई ऐसी जल्दी नहीं है। जाने से पहले सरदार से जरूरी हदायत लेना चाहता हूँ। आप सरदार से कह दीजिए कि वो मुझे आगाह कर दे। और इसके बाद खालिद बिन वलीद ने इब्ने हातिम को सरदार के हवाले कर दिया। शाम के वक्त इब्ने हातिम ने खाला के घर का रुख किया। उसने सोच लिया था कि वो खाला से साफ साफ कह देगा कि उसने ये कसम खाई है कि जब तक मक्का का हर मुसलमान मदीना के मुसलमानों की तरह सर उठाकर चलने के काबिल नहीं हो जाता, वो नोहना से शादी नहीं करेगा। इब्ने हातिम को नोहना और खाला खालू का बहुत ख्याल था, लेकिन इसने जो कसम खा ली थी इसे वो किसी कीमत पर तोड़ने पर आमादा न था। इब्ने हातिम ने खाला के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा नोहना ने खोला। वो इब्ने हातिम को अपने सामने देखकर मौजकार रह गई। इब्ने हातिम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। नोहना ने पलकें झपकाते हुए कहा, तुम इब्ने हातिम, तुम इब्ने हातिम ही हो ना? हाँ हाँ, मैं इब्ने हातिम ही हूँ। नोहना बोली, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। इब्ने हातिम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नोहना, तुम ख्वाब नहीं देख रही बल्कि खुली आंखों से मुझे देख रही हो। नोहना बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इब्ने हातिम ने अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा, लो मेरा हाथ छू कर यकीन कर लो। नोहना बोली, यकीन तो आ गया है, मगर उसने सरगोशी में कहा कि दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी, अंदर आने को नहीं कहोगी नोहना? नोहना जैसे ख्वाब से चौंक पड़ी। आओ, जल्दी से सामने से हट गई, अंदर आ जाओ इब्ने हातिम। इब्ने हातिम घर में दाखिल हुआ। नोहना आगे और इब्ने हातिम पीछे था। इस वक्त कमरे से नोहना की माँ की आवाज सुनाई दी, कौन आया है बेटी नोहना? इब्ने हातिम आए हैं माँ। इस वक्त नोहना और इब्ने हातिम बरामदे में पहुंच चुके थे। नोहना की माँ बेटी की आवाज सुनकर बरामदे में निकल आई और अब खुले मुंह हैरान नजरों से नोहना और इब्ने हातिम को देख रही थी। करीब आकर इब्ने हातिम ने इन्हें सलाम किया और इन्होंने इसे गले लगाकर दुआएं दी। इन्होंने मोहब्बत से कहा, बेटे आने की इतला तो दी होती। इब्ने हातिम ने जवाब दिया, बस एकदम ही आ गया खाला, इतला देने का मौका ही ना मिल सका। सब अंदर जाकर कमरे में बैठ गए। नोहना जल्दी से खुश्क मेवे और शरबत का गिलास इब्ने हातिम के लिए ले आई। नोहना के वालिद बाहर गए हुए थे, वो भी वापस आ गए। अब दोबारा गुफ्तगू का आगाज हुआ। नोहना की माँ ने बात शुरू की, कितने रोज के लिए आए हो बेटा? इब्ने हातिम बोला, मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ खाला जान। इसके जवाब पर सबकी बाछें खुल गईं। नोहना का रंग तो गुलाब की तरह धमकने लगा। खाला को शायद यकीन आ रहा था। इन्होंने तस्दीक के लिए कहा कि मैं सुन नहीं पाई बेटा, क्या कहा तुमने? इब्ने हातिम ने जरा वजाहत से जवाब दिया, खाला जान, मैंने कहा है कि मैं फिलहाल मदीना में ही रहूंगा, यहाँ से कब और किधर जाऊंगा इसका मुझे इल्म नहीं। नोहना की माँ ने अपने शोहर की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे कह रही हो कि अब तुम पूछो। इन्होंने धीमी सी आवाज में दरियाफ्त किया, बेटे इब्ने हातिम, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम मदीना में रहोगे, मगर तुम्हारी दूसरी बात समझ में नहीं आई। इस पर इब्ने हातिम ने साफ अल्फाज में कहा, खालू जान, मैंने लश्कर इस्लाम में शमूलियत कर ली है, अब मेरा कहीं रहना ना रहना मेरी फौज के साथ है। ये तो और भी अच्छा हुआ बेटा, लश्कर की नौकरी बड़ी इज्जत की नौकरी है, इज्जत के साथ इसमें स्वाब भी है। इब्ने हातिम ने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया खालू जान, जब तक जिंदा रहे गाजी कहलाए और अगर राह खुदा में मारा जाए तो शहीद। ये कहते हुए इब्ने हातिम ने नोहना की तरफ देखा जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उसने तो कोई बात ना कही, अलबत्ता खाला चुप ना रह सकी। इन्होंने फौरन जवाब दिया, खुदा तुम्हें जिंदा सलामत रखे बेटे, मैं तुम्हें लश्कर की नौकरी से मना नहीं करती, लेकिन अगर कोई दूसरी नौकरी मिल जाती तो ज्यादा बेहतर था। इब्ने हातिम को जरा अफसोस हुआ और बोला, वो क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए खाला जान, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे नौकरी भी मिली और साथ में इब्तदा ही से सरदारी भी। खालू जान ने दरियाफ्त किया, वो कैसे बेटा, तुम मक्का में नौकर हुए थे? नहीं खालू जान, मक्का में तो सब मुशरिक रहते हैं। मेरे लिए चचा नईम ने इस्लामी लश्कर के एक बड़े सरदार खालिद बिन वलीद से सिफारिश की है। मैं सीधा इनके पास गया था, इन्होंने मुझे नौकर भी रखा और साथ ही 4 सवारों का सरदार भी मुकर्रर कर दिया, खुदा मुबारक करे। ये अल्फाज एकदम नोहना की जुबान से जैसे फिसल पड़े। फिर इसने फौरन सर झुका लिया। नोहना की माँ और बाप दोनों ने हैरान कुन नजरों से नोहना की तरफ देखा।
हैरत तो इब्ने हातम को भी हुई थी, लेकिन इसे खुशी भी हुई थी, क्योंकि ऐसे वक्त में एक बहादुर और इस्लाम दोस्त लड़की ही इसे मुबारक दे सकती थी। इब्ने हातम ने बराह रास्त इसे मुखातब किया, नोहना मुझे तुम्हारी मुबारकबाद की बहुत खुशी हुई। मेरा ख्याल था कि इस खबर पर तुम रो पड़ोगी, मगर तुमने एक बाहिम्मत लड़की होने का सबूत दिया है। नोहना की माँ खड़ी हो गई और इन्होंने अपने शोहर से कहा कि चलो हम दूसरे कमरे में चलते हैं। नोहना खुद ही पूछ लेगी कि अब इब्ने हातम कब तक इसे ब्याह कर ले जाएगा। यह कहते हुए वो अपने शोहर के साथ दूसरे कमरे में चली गई। नोहना की वालदा के आखिरी जुमले में बड़ी तलखी थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इन्होंने इस जुमले में अपने दिल की पूरी घुटन और उस कुर्ब को समो दिया था जो एक जवान लड़की की मां पर तारी होता है। नोहना ने सोचा कि इब्ने हातम को उसकी मां की बात जरूर नागवार गुजरी होगी, इसलिए उसने फौरन इसका तोड़ किया। इब्ने हातम, मैं अपनी वालदा की तरफ से माफी मांगती हूँ, उसने जल्दी से कहा। वो दरअसल इन दिनों बहुत परेशान रहती हैं। दूसरी तरफ बाबा दिन रात के बीमार हैं, माँ का मिजाज चिड़चिड़ा सा हो गया इसलिए। इब्ने हातम ने एक हल्की सी सांस लेकर जवाब दिया, मुझे इसका पूरी तरह एहसास है नोहना, इन्हें यही कहना चाहिए। आखिर वो तुम्हें कब तक बैठाए रखें? मेरी तकदीर ऐसी है कि यहाँ से वापसी पर मुझे अबू सुफियान के आदमियों ने घेर लिया। वो तो मेरे कत्ल पर आमादा थे। इनमें से एक आदमी मेरे हाथों मारा भी गया। तुम्हें कहाँ तक बताऊं नोहना, क्या क्या ना गुजरा मुझ पर, मगर मैं अपने वादे पर कायम हूँ। बशर्ते जिंदगी शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। नोहना बड़े हौसले से उसकी बात सुनती रही, बीच में बिल्कुल ना बोली। इब्ने हातम के खामोश होने पर वो जैसे फट पड़ी। इब्ने हातम, मेरे बूढ़े माँ बाप कब तक तुम्हारा इंतजार करेंगे? इनकी आंखें किसी वक्त भी बंद हो सकती हैं। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? इब्ने हातम नोहना की बातों से परेशान हो गया। उसने ठीक ही तो कहा था कि आखिर वो कब तक इसका इंतजार करेगी? हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, मगर यहाँ तो साल पर साल गुजरते चले जा रहे थे और इंतजार था कि खत्म होने को ही ना आ रहा था। अब इब्ने हातम को अफसोस हुआ कि उसने जज्बात में आकर कसम क्यों खा ली कि जब तक मक्का में मुसलमान सर उठाकर चलने के काबिल नहीं हो जाते वो शादी नहीं करेगा। मक्का पर मुशरिकीन का कब्जा था। काबतुल्लाह के अंदर 320 बुत रखे हुए थे। मदीना के अलावा तमाम अरब उन बुतों की पूजा करते थे। अगर किसी ने काबा से बुत हटाने की कोशिश की तो पूरा अरब मदीना के खिलाफ उठ खड़ा होगा। इब्ने हातम ने मुज़महिल आवाज में कहा, नोहना, मैंने तुमसे शादी का वादा किया है, मैं इस वादा पर कायम हूँ। यकीन करो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। नोहना तेज लहजे में बोली, मेरे यकीन कर लेने से क्या होता है? अब तक तुम पर यहाँ आने जाने की पाबंदी थी, अब तुम यहाँ आ गए हो। अल्लाह ने तुम्हें मुलाजमत भी दे दी है, तुम्हें मदीना में ही रहना है। फिर कौन सी वजह है या कौन सी बात है जो तुम्हें शादी से रोक रही है? नाजरीन, इब्ने हातम के पास इसका कोई जवाब न था। आखिर उसने नोहना को तसल्ली देने के लिए कहा, परेशान ना हो नोहना, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ। मैं अपने सरदार से बात करूंगा और देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। खुदा ना करे कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, फिर मैं ऐसा कमीना भी नहीं हूं कि तुम्हें इतना अरसा सहारा देकर बात खत्म कर दो। कल तक मेरा और इंतजार कर लो, खुदा ने चाहा तो कोई सूरत निकल आएगी। दरअसल इब्ने हातम में इतनी जुर्रत न थी कि वो नोहना को यह बता सकता कि उसने जोश में आकर एक कसम खा ली है। इब्ने हातम ने नोहना को उम्मीद दिलाई तो वो खुश हो गई। वो फौरन बोली, देखो इब्ने हातम, मुझे धोखा ना देना, कल जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ जरूर आऊंगा। और इब्ने हातम चलने को तैयार हो गया और उसने कहा कि तुम खालू और खाला को जरा संभाल लेना, इन्हें बड़ा सदमा है। तुम जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। इतना कहकर नोहना तो कमरे की तरफ चली गई और इब्ने हातम मौका देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और तेजी से बाहर निकल गया।